بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 38۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ اس رات اسے روک کر یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس رات طائف میں ہر کوئی جاگ رہا تھا۔ عورتیں اپنے شکست کردہ مردوں کو کوس رہی تھیں اور جن کے مرد واپس نہیں آئے تھے وہ بین کر رہی تھی۔ گلیوں میں لوگ آ جا رہے تھے۔ لڑکی ان کے درمیان سے گزرتی لات کی عبادتگاہ تک پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس دور کی عورتوں میں سے ایک تھی جن میں مردانہ شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ عبادت گاہ کے پچھواڑے کی دیوار سے اندر چلی گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا جس میں قہر اور غضب چھپا ہوا ہے۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا۔ کیا تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کہن کی شہرت کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس راستے جس راستے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے ہاتھے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ وہ جوان اور دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں۔ میں نے کہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پر لے پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، بیوی نے اسے کہا۔ تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا، اچھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے، مالک بن عوف نے کہا۔ تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا، یہودی لڑکی نے
ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। अगर तुम में जुरात है तो लात के मुजावरों से कहो कि अपने काहन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दे। उसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो उसे गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आओ औफ के बेटे, बीवी ने उसे कहा, अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा, ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतज़ाम करो और हमारे आने का इंतज़ार। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासर खुलने लगा। बीवी ने उसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया था। सुबह तलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इतलाएं मिली। एक ये कि रात को काहन कत्ल हो गया है, और मुजावर कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा कोई भी काहन के कमरे में नहीं गया था, और ना रात के वक्त किसी को वहां जाने की जुर्रत हो सकती थी। मुजावरों ने यह मशहूर कर दिया है कि काहन को मालिक बिन औफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर यह मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, मालूम नहीं किधर चले गए हैं। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ाए जो हनैन से ताइफ की तरफ आता था। इसके बाद वो वादगाह में चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा, वो कातिल का सुराग जल्दी लगा लेंगे। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो इधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुआसरे में लेने के लिए बढ़ते आ रहे थे। वो वादगाह के अंदर चला गया। उसने मुजावरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। रात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजावर ने बाहर आकर लोगों को हरासा हजूम से कहा, हमारे मुकद्दस काहन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहन हूँ। जाओ अपनी बस्ती को इस दुश्मन से बचाओ जो बढ़ता चला आ रहा है। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके भेजे हुए कासद वापस आ गए। उन्होंने बताया कि रास्ते में जो ताइफ की तरफ आता है मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में न रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा, मोहम्मद अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी वार जरूर करेगा। उसने ऐलान किया कि शहर के दफाई इंतजामात में कोई कमी न रहने दी जाए। कासिद ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल करीम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम ने इतना लंबा रास्ता अख्तियार करने के लिए फैसला इसलिए किया था। छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था, खड्ड नाले भी थे। रसूल करीम ने अपने सलारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा नया जंगजू है। आपने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजूद है। मालिक बिन औफ वैसे ही घात लगा सकता है जैसी घात में उसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीरों से छलनी कर दिया था। रसूल अकरम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुंचने के लिए इख्तियार किया था वो वादी अल मलिह में से गुजरता था और वादी अल कुरान में दाखिल हो जाता था। आप अपने लश्कर को वादी अल कुरान में से गुजारने की बजाय ताइफ के शुमाल मगरब में 7 मील दूर निकल गए और नखीब और सावेरा के इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका निशेब व फराज का था। इसमें पहाड़ियाँ और चट्टानें न होने के बराबर थी। मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी सन 630 15 शवाल 8 हिजरी के रोज़ ताइफ के गिरदो
मौरखीन ने लिखा है कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हनैन के मार्के के बाद और उसमें ज़्यादातर नुकसान बनु हवाज़न का हुआ था। कबीला स्कैफ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाज़न ने ली थी वो बनु स्कैफ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर भी स्कैफ पसपा होकर आए थे। रसूल करीम इस खतरे से बेखबर नहीं थे। अल स्कैफ ताज़ा दम है और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये गलती किसकी थी कि मुसलमान शहर की दीवार के खतरनाक हद तक करीब जा रुके। वहाँ वो पड़ाव करना चाहते थे। अचानक अहले स्कैफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का भी बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी, कुछ शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हट आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुआसरे का कमांडर मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी तेज़ी से शहर का मुआसरा मुकम्मल किया। उन्होंने उन रास्तों पर ज़्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। शहर का दिफा बड़ा मजबूत था। कबीला स्कैफ पूरी तरह तैयार था। मुसलमान तीर अंदाजी के सिवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेखौफी के मुजाहरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अल स्कैफ के उन तीर अंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूँकि वो दीवार के ऊपर से थे और इन्हें आवट भी मुयस्सर थी, इसलिए उनके तीर मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान करते थे। मुसलमान तीर अंदाजों के जैश आगे बढ़ते और पीछे हटाते। मुसलमानों के जख्मों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। मुआसरे के कमांडर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला बनु स्कैफ के तीरों से शहीद हो गए। 5-6 दिन इसी तरह गुजर गए। तरीक़े इस्लाम की मशहूर व मारूफ शख्सियत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीना के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी वो सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जंगी दानिशमंदी का कमाल था। इससे पहले अरब खंदक के तरीक़ाकार से नावाकिफ़ थे। अब सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मुआसरा कामयाब नहीं हो रहा, तो उन्होंने शहर पर पत्थर फेंकने के लिए एक मंजीक तैयार करवाई, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दबाबा तैयार करवाई। ये मकड़ी या चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती थी जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे। खुद उसकी ओट में रहते थे और उसकी ओट में बहुत से आदमी किले के दरवाजे तक चले जाते थे। सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो वहाबा तैयार करवाया था वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक जैश इस दबाबा की ओट में शहर के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम तर बुछाड़ें लगती रही, लेकिन दबाबा जब अपनी ओट में जैश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दबाबे पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल ना रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई थी। दबाबा चूँकि अरबों के लिए एक नई चीज़ थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई, इसलिए वो उसे वही फेंककर पीछे को दौड़े। अल स्कैफ ने इन पर तीर बरसाए जिनसे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुआसरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हटाते थे। बनु स्कैफ पर इसका ये असर हुआ कि उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश ना की। आखिर एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सलारों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि मुआसरे की कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। आपने सलारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मुआसरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम मुआसरा उठाने के हक़ पे थे, जिसकी वजह यह थी कि मक्का के इंतज़ामात आपकी तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था।
یادگار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کہان کی جھوٹی پیش گوئی اور معرکہ رین میں مسلمانوں کی ضربکاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 600 فروری کے روز جہرانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور 1000 اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھی۔ فوجی ساز و سامان